Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good in the midst of COVID-19. This is Memuna Noor, course instructor of Introduction to Calligraphy. Today we have a topic, importance of space in calligraphy. Let's start. First, we will discuss about the element of space in artistic media. Space, as one of the classic 7 elements of art, refers to the distances or areas around, between, and within components of a piece. Students, as you know, calligraphy, the art of beautiful handwriting. It may be derived from the Greek words for beauty and to write it beautifully. It implies a sure calligraphy is a visual art related to writing, and calligraphy is where symbol and gesture meet. Okay, space can be positive or negative, open or closed, shallow or deep, and two-dimensional or three-dimensional. Dear students, calligraphy can be made into a font, so it can be used pretty much anywhere where you need to design something using text, fonts, typography, logos, posters, illustrations, book design, and so on. So you need to be very careful about space. It can be positive or negative, as we do in still life, in painting, in composition. So we need to be careful about positive और negative space, open और closed, जितने भी shadows और depth दिखानी होगी उन सब चीज़ों में, plus two-dimensional and three-dimensional. It will be very important. Sometimes space is not explicitly presented within a piece, but the illusion of it is. Sometimes ज़रूरत नहीं होती स्पेस को एक्सप्लेन करने की, बट वो इल्यूजन से क्रिएट हो जाती है और वो पेंटिंग का पार्ट बन जाती है, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. राइट, now move on to next slide. Using space in art. The American architect Frank Lloyd Wright once said that space is the breath of art. What Wright meant was that, unlike many of the other elements of art, space is found in nearly every piece of art created. He means space is very important element of art in calligraphy, in design of calligraphy, such as posters, illustrations, book design, and whatever we are doing as calligraphy. It is very important. Painters imply space, photographers capture space, sculptors rely on space and form, and architects believe space. इन सबको स्पेस में जो है वो ज़रूरी होता है उस पर काम करना. It is a fundamental element in each of the visual arts. So it's clear, space is very important part of element of art. Space gives the viewer a reference for interpreting on an artwork. For instance, you may draw one object larger than another to imply that it is closer to the viewer. All right. जिस तरह हम आर्किटेक्चर में और डिफरेंट स्टिल लाइफ्स में ध्यान रखते हैं पर्सपेक्टिव का और साइजेस का, डिफरेंट साइजेस का, और स्पेस में जो है वो हम मेंशन करते हैं ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें और एम्फेसाइज कर सकें जो भी हमने फॉन्ट को जिस तरह से भी हमने दिखाना है. एज यू सी इन द इमेज, अल्लाह का इमेज आपके सामने है.
अल्लाह जिस तरह से राइटिंग में लिखा गया है, यू कैन सी. ओके. Likewise, a piece of environmental art may be installed in a way that leads the viewer through space. अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि जब कोई भी पीस ऑफ आर्ट हो, कैलीग्राफी की स्पेसिफिकली बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो उसमें वीवर को स्पेस चाहिए होती है टू एंटर इन द पिक्चर. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से. Move on to next slide. How do you space letters with signs in calligraphy? The rule of thumb is that the space in between the letters in a word should be half of the letter width, and the space in between words should be the width of one letter. Clear? If your letters are 2 inches wide, then the space between letters should be 1 inch and the space between words should be 2 inches. इट मीन्स जब हम राइटिंग करते हैं ना, चाहे कलम से करें, चाहे बॉल पॉइंट से करें और चाहे ब्रश से करें, तो हमें मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. वर्ड्स की स्पेस तभी इक्वल आती है. अगर हम कोफिक फॉन्ट की बात करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हमने अलाइनमेंट में जो है वो जाना है. और अगर हमने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं तो एक ब्लॉक अगर हमने एक में स्पेयर किया है तो बाकी सब में भी उसी तरह से जाएगा. इक्वल स्पेस होगी तो ही वो ब्यूटीफाई करेगा. ऑलराइट. और अगर हम वर्ड की कोई राइटिंग जो है वो कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि विड्थ जो है स्पेस आ रही है लेटर्स की, वो किस तरह से है. 1 लेटर की स्पेस आ रही है और अगर हमारा जो लेटर है वो 2 इंचेस उसकी विड्थ है तो फिर हम उस लिहाज से जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे स्पेस को. तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने. ये जो हमारे सामने पेंटिंग है इसमें हम देख सकते हैं जिसमें कलम के साथ लिखा गया है. इक्वल स्पेस होगी तो ही वो ब्यूटीफाई करेगा और उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे. ओके, मूव ऑन. पिक द राइट nib size for the space. If you have a lot of space to fill with only a few words, for example, a name on a certificate, choose a nib large enough to fill the space while keeping the letters in proportion. On the other hand, if you have a lot of words to write in a small space like a wedding invitation, choose a smaller pen. Leave only a millimeter or two between each letter. Between each word, leave a space that is the width of that alphabet's O. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. अगर हमने स्पेस के अकॉर्डिंग जब तक हम काम नहीं करेंगे ना, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते. अगर हम A3 साइज़ ले लें और उसमें थोड़ा सा या छोटा साइज़ अगर हम फ़ॉन्ट का यूज़ कर लेंगे तो वो उसको इंटरेस्टिंगली डील नहीं करेगा. ये मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स भी रखी हैं. सर्टिफिकेट पे अगर हम बहुत बड़ा नाम लिख देंगे या बहुत छोटा नाम लिख देंगे तो उसको मैनेज करना जो है ना, वो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है. ठीक है. समटाइम्स हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है जिसको हमने कवर करना होता है और समटाइम्स छोटी स्पेस होती है, जैसे इनविटेशन कार्ड्स हो गए, तो उसमें हमें जो है वो स्पेस हमारे पास कम होती है और हमारे पास जो है वो वर्डिंग ज़्यादा होती है. तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो या पेन जो है वो स्मॉलर निब वाला यूज़ करेंगे. राइट. Mark out your nib widths when starting from scratch. Index cards are good for this. For the average alphabet that uses both upper and lower case letters, you want 8 nib widths per line. Starting with U, baseline make 8 marks, one above the other on the edge of your paper. At the fifth square up,
Draw a dashed line. This is where your lowercase letters will stop, and after the seventh, draw another unbroken line to represent the top edge of your capitals. The 8 mark is the upper limit of ascenders. Students, index means a small card on which information is recorded, typically stored alphabetically with um, others in a card index. Index cards basically are used for a wide range of applications and environments. So see, अगर हमने उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है तो किस तरीके से करना है. असेंडर का मैं आपको बता दूं, अ पार्ट ऑफ अ लेटर दैट एक्सटेंड्स above the level of the top of the of an axis. ठीक है. तो जब हम स्टार्ट से ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और वन बाय वन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें जहाँ कर्व देना है और जहाँ हमने जो है वो साइजेस का ध्यान रखना है, कौन सा जो है वो कहाँ से मोटा होगा कहाँ से पतला होगा, इन चीज़ों का ज़रूर हमने ध्यान रखना है. क्लियर. अलाउ स्पेस बिटवीन ईच लाइन फॉर असेंडर्स एंड डिसेंडर्स. ठीक है. तो स्पेस का हमने ध्यान रखना है. द टॉप थ्री नेब विड्स, द टू for capitals, and the topmost provide space for any ascenders. Descenders should have 3 nib widths available below your baseline. Right? जो baseline है उसमें 3 nib जो width है उसकी होनी चाहिए. निब के भी साइजेस है ना, जिस तरह कत के कलम के साइजेस हैं उसी तरह उसके भी साइजेस हैं. When centering words, sketch them out on a spare piece of paper. Find the center letter of each line and estimate how far to write. You have to start that line from the center of the space. Rule your pages using a straight edge and a light pencil. If you use waterproof, smudge-proof ink, you will be able to erase the guidelines without marring your hard work. Just be sure to let it completely dry first. अगर हम इंक का यूज़ करेंगे, जैसे ग्रेड लाइंस लगाते हैं या ग्राफ पेपर पे हम काम करते हैं, उसी तरह हम इस पे भी काम कर सकते हैं. बस हमने ये ध्यान रखना है कि अगर हम सेंटर जो यूज़ कर रहे हैं ना, वर्ड्स सेंटरिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है उसको वो रफ पेपर पे जो है वो एक स्केच करना पड़ेगा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारी कॉम्पोजिशन जो है वो किस लिहाज से बैलेंस होगी. ऑल राइट. नेक्स्ट, यूज़ अ लाइट बॉक्स. जो भी हमारे पास फ्रेम बना होगा उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है. इफ़ यू वुड प्रिफर नॉट टू रूल योर पेज और इट वुड बी impractical to do so, a light box can help you if you have a ruled sheet underneath. ठीक है. अगर आपने कोई बारीक सी वो शीट ले ली है ग्राफ पेपर की तरह की या ग्रेड लाइंस वाली, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस पर मैक्सिमम काम करना अल्फ़ाबेट्स के साथ या वर्ड्स के साथ. सो यू नीड टू फ्रेम अ लाइट बॉक्स. ठीक है. कोई भी हम बॉक्स बना सकते हैं उसको. Tips and warnings. When centering, don't necessarily start with the middle character and work outward. ठीक है. सेंटर से स्टार्ट नहीं करना. Doing this will give an unnatural look to your letters and you want them to flow one of the next even if they do not actually connect. Being perfectly centered is less important than calligraphy that flows. So it's very clear for the tip of calligraphers to use from the bottom to top और top to bottom. प्लीज़ मेक श्योर करें कि सेंटर से हमने कुछ भी जो है वो स्टार्ट नहीं करना. पेंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी और वो अननेचुरल लुक देगा लेटर्स को. ठीक है. जैसे ज़बरदस्ती हमने उसमें पुट किया हुआ है.
Clear? Now move on to very important point, how to use negative space in calligraphy. जिस तरह स्टिल लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह कैलीग्राफी में भी है. नेगेटिव स्पेस वेयर बॉडी और फॉन्ट और लेटर्स डोंट एग्जिस्ट, और पॉजिटिव एरिया जहाँ बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी फिगर कोई भी फॉन्ट वहाँ पे एक्चुअल फॉर्म में है. नेगेटिव स्पेस इज दैट एरिया अराउंड and between an image, or for our discussion here, the space around and between letters. Negative space includes counters as well. When you make an O, for example, you are enclosing a circle of blank space in the center of the letter, which is called a counter. It still belongs to the letter, it just usually don't have anything in it. मीन्स नेगेटिव स्पेस वो वाली स्पेस है जहाँ बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही और एनवायरनमेंट जो है वो उसको सपोर्ट करते हुए या जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको सपोर्ट करते हुए प्रोमिनेंट कर रहा है. लेट्स सी, बट वी आर आर्टिस्ट, so let's go ahead and do something with it. It's much more exciting to use color, line, texture or shape in the negative spaces. Okay, it's an example. अगर हमने बैकग्राउंड में अल्फ़ाबेट को जो है वो प्रोमिनेंट करना है किसी भी तरीके से, तो हम बैकग्राउंड पे भी काम कर सकते हैं, राइट? Examples of negative space in calligraphy. In the word attitude below, I used color in the negative space around those letters. ठीक है, तो बैकग्राउंड स्पेस कवर करके भी हम काम कर सकते हैं टू हाईलाइट दी फॉन्ट और लेटर. द कलर्स क्रिएट एम्फेसिस एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कोट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कोई भी कोटेशन अगर हमने लिखनी है और उसमें हमने किसी वर्ड पे फोकस करना है ना, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट? कि बैकग्राउंड में हम जो है वो कलरफुल सा इमेज देके, तो बीइंग एन आर्टिस्ट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू डू, टू एम्फेसाइज, टू फोकस ऑन वन थिंग. एंड जो हमने अवेयरनेस देनी है या जिस पे हमने फोकस करना है या जो हमने लोगों को बताना है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं किसी भी तरीके से. इट्स अप टू अस बीइंग एन आर्टिस्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट, फॉर द बुक मार्क कैटलन, द कलर इज in the letters, while an intricate pattern fills the negative space around them. तो negative space किसी भी तरीके से कवर की जा सकती है. As I told you before, it can be a little more challenging to work on a dark background, so aim for drama with high contrast. तो कोशिश करें कि आप जब इन चीज़ों पे फोकस करें डार्क बैकग्राउंड के साथ. लिटरली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टू डू अगर हमने कोई टेक्सचर उस पर क्रिएट करना है. बट इट्स अप टू अस बीइंग एन आर्टिस्ट, वी कैलीग्राफी आर्टिस्ट, वी कैन पुट सो मैनी थिंग्स इन इट. सपोज इन द क्यू seen below on the right, calligrapher drew flourishes in, around and through the letter. He connected the artist, I'm talking about the artist, who connected the lines of the letter with the flourish to achieve unity and interest. Curvy lines add variety to the straight lines of the letter. So, see, अगर हमने बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करना तो हम उसी को स्टाइलाइज्ड फॉर्म में ब्यूटीफाई कर सकते हैं. ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू till now. So move on to next slide. 3 tips for designing negative space. Create strong contrast to existing design. If the lettering is light, use dark colors as I talked about last slide. For negative space, readability is important. Experiment with different kinds of contrast, line, width, color, shade, etc. Second point, which is very important, add rhythm or repetition. As shown in Catlin, I subtly repeated the letters, I'm talking about the artist, shapes in black patterns on
black paper, right? I often find that a border helps, but not always. Sometimes, like the queue, the lines need the freedom to breathe. समटाइम ज़रूरी होता है लाइंस के साथ कंपैरिजन करना, कॉन्ट्रास्ट करना, लेकिन बाय द वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट. All of my examples began on graph paper using a pencil and razor. Try varying weight, color, slant, and lines until you have something positively pleasing. Okay, students, writer is talking about the practicing of these things. If you want perfection, you need to be do more practice for it. जो भी हमने लेटर जिस तरह भी फॉर्म में लिखना है, हमने उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए फोकस करना है, राइट. समटाइम्स स्पेस ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा बिटवीन लेटर्स, एंड समटाइम्स जो सराउंडिंग है हमारे बैकग्राउंड में स्पेस, वो भी इस चीज़ को कवर कर देती है. ओके, सी देर आर ऑल्सो 2 एग्जाम्पल्स फॉर इट, जिसमें एक में जो है वो फिलिंग करके फॉन्ट को दिखाया गया, और दूसरी साइड पे देखें बैकग्राउंड के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ और बैकग्राउंड के साथ. ओके, सी जिसमें हमने नेगेटिव स्पेस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करके टेक्सचर्स भी दे सकते हैं, उसमें जो है वो शेप्स के साथ भी काम कर सकते हैं. इट्स अप टू अस. और स्टे हियर में वाटर कलर के साथ और फॉन्ट जो है वो ब्लैंक छोड़ के, पॉजिटिव स्पेस को ब्लैंक छोड़ के नेगेटिव स्पेस पे जो है वो फोकस किया गया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है. ओके, सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें जो है वो स्टिपलिंग के साथ, डॉट डॉट के साथ जो है वो कैलीग्राफी को प्रोमिनेंट किया गया है. देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया, वेस्टर्न कैलीग्राफी में भी बता दिया है. एक छोटा सा डेमो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के सूरत में, तो आप उसको भी देखिएगा. इसमें देखें डॉट 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 जो है वो स्टिपलिंग के साथ हमने जो है वो कैलीग्राफी को लिखा है, जिसमें पॉजिटिव स्पेस जो है वो ब्लैंक है और नेगेटिव स्पेस पे हमने फोकस किया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव स्पेस ऑटोमेटिकली प्रोमिनेंट हो रही है. ओके, very beautiful painting in a very simple and decent way, so you can see and follow it, right? Okay students, I'm gonna share with you a small tutorial about what you need to start calligraphy. नॉर्मल पेन्स की बात कर रहे हैं और रबर बैंड की बात कर रहे हैं. इनको दो पेन्स को ज्वाइन करके जो है tie both the pens together with the rubber band. It's a very easy and interesting tutorial, just for few minutes. So see, step 2, get the pen angle right. जिस तरह हम कलम की बात करते हैं ना, उसी तरह पेन निब की भी यही, जितना उसमें विड्थ देते जाएंगे उसी लिहाज से जो है वो आपकी बनती जाएगी. क्लियर? As I told you before in presentation, 45 डिग्री का जो है वो एंगल हम इसके लिए यूज़ करते हैं for writing. So start writing. Step 3, एंगल चेक कीजिएगा जिसमें हमने जो है वो काम करना है, और फिर उसके बाद हम फोकस करेंगे. See students, here is the calligraphy writing in a very simple way. Just check and observe his angle of pen. सी, जहाँ स्पेस रह जाएगी उसके बाद में जो है वो हम स्टाइलाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. स्टेप 4, कलर द ग्राफ्स इन. सी, कलर कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है पेंसिल शेड के साथ, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए. इट्स अप टू यू. ओके, it depends your own choice and aesthetic sense how you are using your calligraphy to make it interesting. बट एंगल का ध्यान रखना, जिस तरह हम कलम में ध्यान रखते हैं, ये सेम वैसे ही है. 2 पेन्स के साथ सिंपल जब हम रफ ड्राइंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जो स्पेयर इमेजेस की बात हम कर रहे थे,
So it's a complete picture now. You can see, very easy to do. ओके स्टूडेंट्स, जो मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रही थी ना, असेंडिंग में ऊपर वाला जो है उसमें, अच्छा इसमें साइजेस देखिएगा, ये आपके सामने है, ठीक है। डिफरेंट साइजेस के कलम जो है वो इसमें यूज़ किए गए हैं। नेब की बात कर रही हूँ, तो सब में जो है वो डिफरेंट हैं साइजेस। 8 साइजेस भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप कोई भी जो है वो, अगर आपने वैरायटी चाह रहे हो और आप हर चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हो, तो ये डिफरेंट आपके सामने साइजेस हैं। होप सो स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो हम इस पे काम कर सकते हैं। अरेबिक फ़ॉन्ट का भी मैंने आपको बता दिया है, और वेस्टर्न कैलीग्राफी में भी, इंग्लिश राइटिंग में जब हम करते हैं तो उसमें भी मैंने आपको साइजेस और इन चीज़ों का क्लियर कर दिया है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल लेट यू नो सो मैनी थिंग्स, कि जो मैं आपको बता रही थी, नेप और साइजेस की बात कर रही थी, तो वो किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। Hopefully you will be in touch with me, and you can ask any question. Till then, take care. Allah Hafiz.